Hello, guys. This is Cricketic review of India versus Bangladesh Champions Trophy. First game, India won and beat Bangladesh. Um, guys, as we predicted, इंडिया तो हरा ही देगा ऑब्वियसली बांग्लादेश को. बट हमने काफ़ी एनालिसिस किया था इवन बिफोर गोइंग इनटू चैंपियंस ट्रॉफी, एंड दिस इज़ द रिव्यू वीडियो ऑफ द मैच. तो गाइस, let's just go right into the game. See guys, ऑब्वियसली इंडिया तो जीतने वाला ही था बांग्लादेश के साथ, बट द वे वी हैव वन was not a bit convincing, बिकॉज हमको ऐसा लग रहा था कि हम इजीली बहुत बांग्लादेश को हरा देंगे. ऑब्वियसली ये तो पता था कि चलो एटलीस्ट वो 200 रन तो मार ही देंगे बांग्लादेश. बट द थिंग इज़, जिस तरह से स्टार्ट हुआ था इंडिया का, जैसे कि हम देख सकते हैं, almost at 35 for 5 the Bangladesh, and after that Zakir Ali and Hridoy made amazing partnership, and then they just came back in the game. Hridoy again 100 runs. Hridoy, come on, like, salute, bro. Tawhiz Hridoy, 100 runs, 118 balls, 6 fours and 2 sixes. Let me tell you, the pitch wasn't that amazing इन द सेंस, बट जो फर्स्ट बैटिंग की बांग्लादेश ने, वो इन अ वे गुड डिसीजन था. बट अगेंस्ट इंडिया ऑब्वियसली फर्स्ट बैटिंग करोगे तो तुम्हारी टीम बहुत कम रनों में ढेर हो ही जाएगी. तो मे बी अगर इंडिया को फर्स्ट बैटिंग देते बांग्लादेश, तो मे बी दे हैड सम चांस. बट अगेन in the second inning the pitch was deteriorating, so it was getting a bit slow and to pace. So yeah, Zakir Ali also played really well. 68 runs of 114 balls, 4 fours. Uh, yeah, but the thing is, and again, Mohammad Shami, Mohammad Shami coming back into the form of ICC events that he is always in. He took 5 wickets and also completed his 200 wickets in international cricket in ODI format. Uh, Again, Mohammad Shami at 53 runs, 5 wickets, 5.3 ka economy. And Harshit Rana again supporting really well, 7.4 overs में 31 runs and 3 wickets, at the economy of 4.04. एंड अगेन अदर्स, अक्षर पटेल अमेजिंग, 2 बॉल में 2 विकेट लिए, और तीसरे बॉल पे रोहित शर्मा ने कैच छोड़ा. बट इट्स फाइन, समटाइम्स इट हैपन्स. इस गेम में बहुत सारे कैच छूटे हैं, एंड ऑल्सो बोथ साइड्स कैच छूटे हैं. जाकिर अली ने भी कैच छोड़ा छोड़ा था के एल राहुल का, एंड when he was like 8 or 9 runs, and then he went on to making 41 runs. And गेम सिचुएशन भी ऐसा था कि उस टाइम पे कैच छोड़ना बहुत ही मुश्किल पड़ा. एंड yeah, this was the thing. And obviously, Rohit Sharma getting amazing start, 41 runs of 36 balls. He does what he does. That's his role. पहले कुछ ओवर्स में ही पावर प्ले के थोड़ा एक स्टार्ट दे देना टीम को, जो आखिर में जाके बहुत ज़्यादा काम आया. एंड अगेन शुभमन गिल की क्या बात करें हम. शुभमन गिल is made for this format. He just piles on runs, piles on centuries. I think this guy, sorry, I think this guy is going to make history when it comes to ODI format, and eventually uh, scoring a lot of tons. Obviously, Virat Kohli uh, got a got a decent start, but played a very awkward shot against Rishad Hussain, who bowled really well for his two wickets. I think, yeah, 2 wickets, 38 runs, 2 wickets, 3.8 ka economy, which is decent for against India also. Um, and yeah, KL Rahul coming in at the end and playing amazing knock as a finisher. We have to get used to KL Rahul being a finisher now. So, and शुभमन गिल ये इनिंग्स थोड़ा हम उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा स्लो कहेंगे, बट आई थिंक वनडे फॉर्मेट के हिसाब से ये डिसेंट पेस्ड इनिंग था, 78 स्ट्राइक रेट के साथ, एंड 4 फोर्स एंड 2 सिक्स.
आई थिंक ही प्लेड अमेजिंगली वेल. आई डोंट थिंक वो स्लो खेल रहा था बिल्कुल भी. वो पेस कर रहा था अच्छे से इनिंग्स को अपने. एंड या ये कह सकते हैं हम कि दिस टीम लुक्स लाइक अ गुड बैलेंस. ऑल्दो आई थॉट मे बी अर्शदीप को चांस दिया जाएगा, बट दे वेंट विथ हर्षित राणा. एंड why not? Like he is giving wickets, and with the new ball as well today, and again coming back in the second spell. So I think maybe Arshdeep को chance मिलेगा in the future. I think against Pakistan also देना चाहिए अर्शदीप को चांस एक. बट वो भी है कि हम किसके बदले थे. कुलदीप यादव थोड़े ऑफ बीट लगे, बट अगेन ही इज अ चैम्पियन बॉलर, ही विल कम बैक in the crucial games. And again, Akshar Patel bowled really well, and Jadeja also kept it very economical. Hardik Pandya was again not seeming like the fast bowler, but obviously he is there to just chip in overs. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही कॉम्बिनेशन के साथ हम जा ही रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है इन द फ्यूचर्स कि समडे कि हम सोच रहे हैं कि चलो हमारे बैटर्स बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, तो मे बी हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, एंड अर्शदीप को खिलाया जाए, एंड ऑल्सो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया जाए इंस्टेड ऑफ कुलदीप यादव, सो दैट वो तीन स्पिनिंग ऑलराउंडर्स का भी रहेगा बैलेंस क्रिएटेड, एज वेल एज वी हैव थ्री पेसर्स एज वेल. बट यहाँ की जैसे विकेट्स है वैसा लग नहीं रहा है कि फास्ट बॉलर्स उतने काम आएंगे. पहले तो ऐसा लग रहा था कि फास्ट बॉलर्स ही काम आएंगे, बट अब ऐसा लग रहा है कि चलो स्पिनर्स काम आ रहे हैं, बिकॉज आज की गेम में ऐसा हुआ कि बांग्लादेश को एक स्पिनर कम पड़ गया, क्योंकि उनके स्पिनर्स बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, बट फास्ट बॉलर्स रन्स लीक कर रहे थे. एंड अगेंस्ट इंडियन प्लेयर्स को तुम थोड़ा भी पेस दो तो वो अच्छे से खेलते हैं. एंड अगेन उनके फास्ट बॉलर में वो जो एक नया फास्ट बॉलर था, आई थिंक राना करके नाम है, उसको भी नहीं लिया, बट ही वॉज डिसेंट बॉलर एज वेल. ही हैज़ ग्रेट सक्सेस अगेंस्ट अ लॉट ऑफ टीम्स इंटरनेशनली, बट उसको नहीं खिलाया गया. अगेन उसको भी खिला सकते थे, या मे बी स्पिनर ज़्यादा खिला सकते थे. अब ऐसा लग रहा है कि तीन स्पिनर के साथ जाना स्ट्रैटेजी गुड है, अच्छी है, but I would somehow really want to accommodate Arshdeep in the team, because the thing is we need that left armer in the team, because एक तरह के bowlers ऐसा हो रहे हैं, because हर्षित राणा भी राइट हैंड सीम अप डालते हैं, मोहम्मद शमी भी स्विंग करते हैं, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द game the swing goes away. But Harshit Rana, Mohammad Shami, Hardik Pandya, they seem like one directional, one type of bowlers. Obviously the skill sets are different, but again with the old ball they seem like that. बट अर्शदीप अगर एक अलग एंगल देते हैं और डेथ में भी बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं, तो अभी तक वैसा सिचुएशन नहीं आया हमारे पास कि डेथ भी हमारा टेस्ट हो सके. बट मुझे लगता है फ्यूचर में ऐसा होगा, और तब हमें अर्शदीप काम आएंगे. सो आई थिंक समहाउ उसको अकोमोडेट करने का ट्राई करना चाहिए. मे बी अ गेम कुलदीप कैन रेस्ट एंड अर्शदीप कैन प्ले डायरेक्टली. Yeah, so there can be some permutation combinations here possible, but yeah, obviously Hardik Pandya gives us that depth. And again, Akshar Patel at 5, as we discussed previously, which was clearly the game plan. And right now the thing is, now I think uh, हम पॉइंट्स टेबल की तरफ जाए शायद. पॉइंट्स टेबल कहाँ है? सो पॉइंट्स टेबल अगर हम देखें तो इंडिया ऑब्वियसली आ गया है फर्स्ट शायद, राइट. एंड या इंडिया, न्यूजीलैंड भी जीता है, देखो 2 पॉइंट्स के साथ है न्यूजीलैंड एट 1 पॉइंट प्लस 1.2 नेट रन रेट, एंड इंडिया का है प्लस 0.408. अगेन अगर हम थोड़ा जल्दी चेस कर लेते इसको तो थोड़ा नेट रन रेट ऊपर चला जाता. बट अगेन पॉइंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इवेंचुअली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होगा, और अगर हम जीत ही जाते हैं न्यूजीलैंड के साथ तो डजेंट मैटर, राइट. नेट रन रेट हम फर्स्ट ही क्वालिफाई होंगे. एंड या बांग्लादेश पाकिस्तान 0-0. Yeah, Bangladesh lost against New Zealand. So
Now they have a mammoth net run rate to cope up as well. So I don't think. Obviously, next game India versus Pakistan will just decide who qualifies, right? And I think India will. एंड आई थिंक इस कॉम्बिनेशन के साथ ही जाते हैं हम तो काफ़ी अच्छा रहेगा. आई डोंट नो व्हाट कॉम्बिनेशन पाकिस्तान विल कम अप विद, बिकॉज लास्ट गेम में उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट ने उतना खास नहीं किया था, बट उतने विकेट्स भी नहीं ले पाए थे. सो आई थिंक उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा वो है. प्लस उनके बैटिंग डिपार्टमेंट में ऐसा लगता है कभी कभी कि चलो एंड टुवर्ड्स द एंड भी काफ़ी बैट्समैन है जो खेल लेते हैं, अच्छा खेल लेते हैं. बट आई थिंक ओवरऑल द टीम हैज़ a bit struggling game, struggling series. So I think India will totally win. Uh, and India obviously won't struggle against Pakistan. And yeah, guys, this was the game review. अगर हम पाकिस्तान की टीम में जाते हैं, हम देखते हैं चलो कि कौन से प्लेयर्स वो खिला सकते हैं. कि देखो बाबर आजम तो है ही, इमामुल हक, कमरान गुलाम, कौसब शकील, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह प्लेड रियली वेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड. अच्छी बैटिंग कर रहे थे. सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान. सो इन अ वे ऐसा हो जाएगा ना, फिफ्थ बॉलर उनका ऐसा हो जाता है कि सलमान आगा और खुशदिल शाह के बीच में है. दे हैव टू मेक 10 ओवर्स समहाउ. एंड शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह एंड हारिस रऊफ तो है ही. ऑब्वियसली नसीम शाह अगर पावर प्ले में ही विकेट ले लेते हैं तो वो इफेक्टिव रहते हैं. बाकी टुवर्ड्स द एंड ही इज़ नॉट दैट इफेक्टिव. But yeah, Haris Rauf obviously always takes wickets and he is a threat as well. And obviously, Shaheen Shah Afridi is a big threat to Kohli and Rohit. And the way they are playing right now, Shaheen Shah Afridi can be a bit tricky to bat against. But I think Shubman Gill is in a great form. The thing is, आज भी ऐसा हुआ कि अगर टॉप ऑर्डर क्रम्बल हो जाता है इजीली. एंड अगेन अक्षर पटेल का जो गैम्बल है जो एट 5, इफ इट डजंट वर्क इट ऑलवेज कम्स ऑन टू द लोअर ऑर्डर बैट्समैन लाइक KL राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा. सो अभी भी मुझे लग रहा है कि टुवर्ड्स द एंड हमारे पास उतनी खतरनाक बैटिंग नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन में आ जाए तो हैंडल कर पाए. बिकॉज ट्रस्ट मी, ये तो बांग्लादेश था. अभी हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, न्यूजीलैंड के साथ खेलेंगे, तब हमको रियल टेस्ट होगा जब अच्छे अच्छे बॉलर्स आपके बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलिंग करेंगे तो हमको वीकनेसेस पता चलेगी. सो आई थिंक maybe still I think some of the top order batsmen, if they just step up, will be good against Pakistan on Sunday. So thank you so much, guys. This has been the game review of India versus Bangladesh. um, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर सकते थे और बट आई थिंक हमें सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम उतरते भी है इसी सेम कॉम्बिनेशन के साथ तो मुझे लग रहा है कि शायद हमें पाकिस्तान के सामने थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. आई थिंक अर्शदीप कैन रिप्लेस इन द नेक्स्ट गेम anyone in the team because that's thing किसको replace करेगा, right? I think the way it's going, GG also backs Harshit Rana a lot. So I think अभी भी सेम कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे. बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान बैट्समैन विल बी वेरी comfortable against the current bowling lineup. But let's see what happens. I just wish for good things to happen. Anyways, guys, thank you so much. This is K. Rupandia from Berlin signing out from Cricketic, and see you guys later in the next review video. Till then, keep rocking. And also tell me in comments what do you guys think about today's game as well as the game against Pakistan on Sunday. Tell me your predictions. Tell me who should replace whom. Who do you think can be the next scapegoat? Maybe Pant can come in against instead of someone else. I don't know. Guys, you tell me. Thank you so much for watching. Bye bye. See you.